आ everyone. गई प्रिया, गुड मॉर्निंग। ये मेरी दीप्ति मैम आ Good गई। morning, ma'am. With all Good that. Very good morning. Good morning. Wow. Good morning, ma'am. Good morning. Good Very good morning. morning, Saroji. Good morning, You're ma'am. hilarious. I swear. I mean, like I was listening to that message. इन्होंने कल सुबह सुबह सेशन के बाद मुझे इतना फनी मैसेज, आई वाज लिटरली इन स्प्लिट्स, मुझे इतनी हंसी आ रही खुद ही थी। बता रही थी, खुद ही बता रही My थी अभी God, सुबह ने क्या इनका मैसेज सेंस बताया। ऑफ ह्यूमर। तो मुझे भी बता दो अभी। मैम यू लुकिंग अभी वेरी भी नाइस। बता दो। We'll also laugh in Yes, the so morning. this toll is for Navin. Pooja Rohra, who from the time I entered, she kept pushing this toll to me. ये ले लो ना, ये ले लो ना अपने store से. So finally, this was what she had planned, and then she gifted it to me, and then she wrote a message that I want you to wear this shrug in the morning session. So this is for you, Pooja. I'm wearing it in the morning session, though I'm not a very shrug person. मैं बहुत minimalist हूँ, like एक piece पहनती हूँ बस. So, but then this is a newfound interest in my life because of you, and I'm absolutely loving wearing it. And thank you so much. Everything that you did for me, I cherish and I always will. So thank you. Ma'am, you are looking so great. I'm very Because beautiful. of her. Because of her. So I'm like, I don't normally wear shrugs and shawls and, stole को भी मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे wrap करती हूँ कि मेरे दोनों हाथ free होने चाहिए. So, but then I'm so loving it that, like I'll try and wear it to work. मैम आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो we can see it fully. Okay. How do I? So this is how it is. This has got Yeah. the fur on the edging one. Yeah, edging it's fur on the edge, and there is a button in here, which I have not tucked in. So there's a button in here, one button here. Sexy So and it's beautiful. glamorous. Her store is so good that I'm telling her to start online deliveries or put herself on the Amazon. Because Divine जो पहनेगा वो Divine ही रहेगा ना, और store का नाम ही Divine है. It's Ma'am, time. tell her to put the address also. We can inform our Agra relatives. Yeah. Yeah. Absolutely. Our address is right at the place. Okay, that she can put herself, Pooja, if you're there. Yeah. So, firstly, welcome everyone once again. And on the YouTube, people, like we did not know that there are so many people watching us, that there are lakhs and lakhs of, like that is the kind of thing that we got from the YouTube, and a congratulatory message. So well done, which means people are changing life. That's the only intention. Otherwise, everything else is secondary, tertiary, not even important. But the most important thing is that हम सब की जिंदगी कैसे बदल रही है और आगे कैसे जाना है हमको जिंदगी 4 figures में आ गया काउंट मैम. 1000 क्या से ऊपर जी? पहुंच गए हम लोग. 1000 से ऊपर पहुंच गए. मैं डेली वो चेक करती रहती हूँ हाँ, कितने ग्रुप मेंबर्स में. हाँ. है ना, हो गए ना. हाँ. नहीं, YouTube ने स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज लिखा है दैट इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों को आपने रीच आउट किया है. बिकॉज हमने तो इसी 23 मिड में ही शुरू किया था ना YouTube चैनल. उसके पहले तक तो हम जाते नहीं थे पब्लिक. I mean, we didn't go on the YouTube. We were just doing it on the Zoom call. So that way. So I think kudos to each one of you and 1,000 people on the group. That means people are really wanting to transform themselves और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और कुछ purposeful करना चाहते हैं ना. यही एक reason है. और क्या reason होगा? So, but then I really hope and wish and pray that रोज लोगों को सारे dreams पूरे हो जाएं. और वैसे भी 2024 is the best year of our life. That is very, very clear. So हम continue करते हैं. Ma'am, please make me the co-host. Yeah, I'll just. Yeah, there you go. So Thank you, ma'am. Dishant is ready. ये हमारे न्यू फाउंड मैस्टन केप है. Yes, Dishant, you can start. Just bring that on the screen. Do you believe in magic? Yeah, there you go. Do you believe in magic? Because लोग बहुत लॉजिकल हो जाते हैं आजकल. हम लोग एक्चुअली दिमाग ज्यादा यूज करते हैं. है बहुत सारा ना हमारे पास, इसलिए तो ज्यादा दिमाग यूज करते हैं कुछ चीजों में. जस्ट टू स्टे स्टिल एंड बिलीव, लेट द यूनिवर्स वर्क्स.
So I was just reading somewhere that universe wants to speak to you much more than you want to listen. मतलब universe आपसे बहुत ज्यादा बातें करना चाहता है, जितना आप सुनना चाहते हो उससे उससे भी ज्यादा कैपेसिटी में वो बात करना चाहता है, लेकिन हमारे पास शायद यूनिवर्स की बातें सुनने के लिए कान नहीं है ना, क्योंकि हम बहुत बिजी है बाकी चीजें करने के लिए. So that's what it is. So do you believe in magic? Yes, please start reading, Dishan. Good morning. Hi. Good Do morning. do you believe in magic? So do you believe in magic is this door जिसके अंदर पीछे रेनडियर है, जैसे मतलब ये मेटाफोरिकली दिया हुआ है ना, जैसे क्रिसमस में हम सांता क्लॉज रेनडियर ये सब बोलते हैं, तो ऐसे वो सारे मेक बिलीव चीजें होती हैं. सो दिस इज हाउ इट इज दैट अगर इस जर्नी में जाना है ग्रेटिट्यूड के, सो वी हैव टू एंटर थ्रू दिस डोर, और इस डोर के पीछे जादू होने शुरू हो जाएंगे जिंदगी में, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज हैज अ बैक. और जब इतनी हायर पावर हायर सोर्स को हम अपना पेरेंट अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, सो वी नेवर नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग और वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज हर चीज हमारे लिए हमारी लाइफ में किसी रीजन से हो रही है, एंड राइट थिंग्स विल हैपन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुल द लाइफ इज. या Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it, and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I'm here to tell you that magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in this magic of life.
You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true. Because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? Get ready for this magic. Our adventure begins 2000 years ago, when life changing knowledge was hidden within a sacred text. Yeah, so very interesting topic. Do you believe in magic? So firstly एक विश्वास होना बहुत जरूरी है. जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक मैजिक होता नहीं हमारी जिंदगी में. सो इसमें शुरू में यही बताया है कि जैसे बचपन में इतने मतलब लाइक इतना ज्यादा वी एक्चुअली हैव दैट काइंड ऑफ इम्पेकेबल ट्रस्ट इन एवरीवन एवरीथिंग कि ठीक है टूथ फेरी आएगी, सांता क्लॉज विल गिव अ गिफ्ट, लाइक उस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में. मतलब वो वाला जो भरोसा है, इट बेसिकली डजंट मीन दैट वी हैव टू बी मैच्योर. इट मीन्स दैट उस तरह का ट्रस्ट एंड फेथ होना चाहिए दैट आई विल डेफिनेटली, अगर मैंने ये टॉय मांगा है तो मैं जिद करूंगी तो मुझे टॉय मिल जाएगा. जिद करो, यूनिवर्स तो बोलता ही है कि जिद करो, दैट आई हैव टू टेक दिस, आई वांट दिस एट एनी कॉस्ट, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बिकम हु आई वांट टू बिकम. मुझे ये चाहिए, मुझे इस तरह की जिंदगी चाहिए, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे लाइफ ऑफ पर्पस चाहिए, मुझे पूरी दुनिया घूमना है, मुझे इतने पैसे चाहिए. यूनिवर्स तो बोलता ही है, ठीक है. तो हम लोग ये सोचते रहते हैं मेरे पास आ क्यों नहीं रहे, मेरे पास आ क्यों नहीं रहे, ये हो क्यों नहीं रहा. इट इज नॉट लाइक दैट. आस्क एंड देन बिलीव एंड रिसीव. यही 3 हमने प्रोसेसेस पढ़े थे. सीक्रेट मूवी में भी यही देखे थे, फिर सीक्रेट बुक में भी यही लिखा हुआ था, उसके बाद पावर बुक में भी यही लिखा हुआ था that there are just 3 processes of receiving what you really want to, which is ask, believe and then receive. जब तक one of them is missing तब तक चीजें नहीं आती है हमारे पास. So we have to ask and then we have to believe and then we have to receive. उसके साथ में ये जो 28 जर्नी की प्रैक्टिसेस हैं, ये साथ में करनी जरूरी है. और पूरे दिन कोशिश करके अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखना है. चाहे डाउनफॉल्स आए तो वो उसको वापस से अपलिफ्ट करना पड़ेगा हमें अपने आप को. तो प्रैक्टिसेस के अलावा ये भी होता है दैट पूरे दिन अपने आप को अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहें एंड हैव अ वेरी जेनरस हार्ट फॉर एवरीथिंग. दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, बहुत जेनरसली करते हैं, है ना. और बाकी की सारी चीजें बहुत जेनरसली अगर लाइफ लीड करेंगे अपने आप, वी विल सी दैट थिंग्स विल स्टार्ट अपीयरिंग बिफोर आवर आइज. एंड जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट लाइफ विल बिकम ब्रेथ टेकिंग, awe-inspiring and exciting. These are the 3 key words here in this topic. Okay, so life will become breathtaking. That wow, oh my God, that's what is called breathtaking, awe-inspiring. That you'll be surprised at how it is so, happening like that. How can it be so real? How can something that I've always dreamt of, मतलब जो मैंने हमेशा सपने में देखा था, वो हकीकत ऐसे कैसे बन गया? इतने सालों से मैंने स्ट्रगल किया, मैंने सोचा था और ये नहीं सोचा था कि मुझे इतने बड़े फॉर्म में मेरे पास ऐसी चीज आ जाएगी, है ना. एंड एक्साइटिंग मतलब डल एंड बोरिंग लाइफ कभी नहीं होगी. बिकॉज कुछ नया. एक्साइटिंग कब होता है? जब कुछ नया ऐसी चीज होती है जो आप चाहते थे लेकिन वो हो नहीं रही थी. एक्साइटिंग होने लग जाएगी लाइफ. हमेशा कुछ न्यूनेस, कुछ फन, कुछ लाफ्टर, कुछ अच्छी चीजें, they will keep unraveling before our eyes. So hence life becomes like that. It becomes breathtaking, awe-inspiring and exciting. And हम वो चीजें जो इसमें लिखा हुआ है ना, that you will start seeing the things that you always thought magically appear before you. मतलब हमने हमेशा से कोई चीज चाही थी, वो चीज हमारे आंखों के सामने आने लग जाएगी. बट ये सब करने के लिए अगर ऐसी जिंदगी चाहिए तो उसके लिए अपना वही इमोशनल एंड मेंटल मसल बनाना पड़ेगा. प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. और जो बीच बीच में जो लाइक अपने जब लो मोमेंट्स आते हैं उस टाइम अपने आप को कैसे आप दोबारा से अपलिफ्ट करके आप मूव ऑन करते हो, ये सब बहुत जरूरी होता है. बिकॉज बहुत ज्यादा अगर चिंता, फियर, वरी में ड्वेल करेंगे, इसका मतलब है यूनिवर्स पे भरोसा ही नहीं है हमको. ऑब्वियसली अगर चिंता हो रही है किसी चीज की, जब यूनिवर्स को बोला है ना कि मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? चिंता की यूनिवर्स को पता लग जाता है. बिटवीन अस एंड द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स देयर इज नोबडी. ठीक है, हम डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं. तो अगर हमने वरी किया, इसका मतलब है हम भरोसा नहीं कर रहे हैं.
है ना, यूनिवर्स की शक्तियों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। और इतनी बड़ी शक्तियां जिन्होंने दुनिया बनाई है, जो सन को राइज करते हैं, जो सन को सेट करते हैं, जो बारिश करते हैं, क्लाउड्स करते हैं, ट्रीज को उगाते हैं, अपने आप पूरी जिंदगी उनका ध्यान रखते हैं, है ना, वो सारी इस तरह का जो प्लैनेट्स को चलाते हैं। सो ऐसी ऐसे फोर्स पे भरोसा ना करना, सो ऑब्वियसली लाइफ विल नॉट बी। सो ये तो करना जरूरी है। जैसे जॉन सी मैक्सवेल थे, एक बहुत बड़े ऑथर, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम सेलर, अभी भी नंबर 1 पे ही है वो। तो वो हमेशा ये बोलते थे, उनसे उनके कोई डिसाइपल थे, उन्होंने उनसे जाके पूछा कि मुझे मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, मुझे बहुत कुछ करना है जिंदगी में, मुझे बहुत खुश रहना है, मुझे लग्जरीज एंजॉय करनी है, मुझे भी कुछ बहुत बड़ा काम करना है जिससे लोगों की जिंदगियां बदले। तो सो बेसिकली लाइक उन्होंने इंग्लिश में बोला था, आई वांट टू डू व्हाट यू डू, लाइक व्हाट यू डू। सो ही सेड नो, आई मीन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट यू वांट टू डू व्हाट यू डू। इफ यू रियली वांट टू डू व्हाट यू डू, देन आर यू रेडी टू डू व्हाट आई डिड? So what I did, what kind of a journey am I scaling, what kind of a life that I lead, what are my thoughts, are you ready to do that what I did? Then you will be able to do what I do. मतलब वो जर्नी तो स्केल करनी ही पड़ेगी हमको, जो इस बुक में हमको एक एक चीज में समझाया है। इसीलिए चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, ठीक है, कितनी भी बुक्स पढ़ लें, देयर इज नथिंग टू बीट द मैजिक बुक, बिकॉज ये प्रैक्टिकल टूल है। होता है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल जब होता है, जैसे हम बहुत थ्योरी पढ़ाते हैं लोगों को, लाइक जिसमें ऑफ कोर्स क्लासरूम टीचिंग होती है और उसमें बड़े बड़े टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स होती हैं, ये होती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल उसको करने के लिए बैठते हैं, वो रियलिटी होती है। बिकॉज जीना तो हमको प्रैक्टिकलिटी के साथ ही है ना, सब कुछ इज hands on, right? I mean, like eventually when you start living your life, तो वो जो सारी चीजें हमने सीखी थी वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उपयोग में तो आनी चाहिए ना हमारे। तो वो कर रहे हैं अब सो प्रैक्टिकल लाइफ तो प्रैक्टिकली होती है, लाइफ थ्योरी नहीं होती है। थ्योरी आपको बताती है कि प्रैक्टिकल कैसे करना चाहिए। सो इस तरह से, किस तरह से हम लाइफ लीड कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज व्हाट दिस बुक इज टीचिंग अस। सो मैजिक बुक इज टोटली, इट इज दैट प्रैक्टिकल मैनुअल, एंड इट इज अ लाइफ मैनुअल, how to lead a life, how to think, how to do the things that you always wanted to do, how to dream big and then actualize them। मतलब बड़े सपने देखो और उसको हकीकत बनाओ, फिर सपने देखो, फिर हकीकत बनाओ। और कैसे वो जर्नी स्केल करनी है, जहां पे आप अभी हैं, जहां तक जाना है, वो वाली जो ब्रिज है, वो एक किताब हमको हेल्प करती है। लेकिन फिर ये जरूरी है कि हम अपना थोड़ा सा एटीट्यूड ठीक करें, थोड़ा लाइक थोड़ी पढ़ाई लिखाई करें। चाहे सिर्फ इस किताब को भी पढ़ लिया तो ये बहुत होता है ना। सरोज जी ने जो कल चीज बोली थी कि हम अपनी जिंदगी खुद क्राफ्ट करते हैं, ठीक है। यू हैव टू क्यूरेट योर लाइफ द वे यू वांट टू, बाय चेंजिंग द थॉट पैटर्न्स एंड इमोशनल लेवल्स। इन दोनों पे, अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस पे वर्क कर करके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। और टूल्स हमको सारे चैप्टर्स में दिए हुए हैं। सो जैसे प्रिया ने भी कल डाला था सुबह सुबह कि ये मॉर्निंग वाला और नाइट वाला जो मैजिक रॉक है, जो लोग पुरानी, मतलब हम पहले से चलते आ रहे हैं, तो जो काउंट माय ब्लेसिंग्स हैं सुबह सुबह और मैजिक रॉक प्रैक्टिस, ये तो हमारी डे 0.1 हो या 0.2 है, दिस कंटिन्यूज, है ना। ये कभी भी हमारा रिसीड नहीं होता है, मेरे ख्याल से हो भी नहीं रहा है। बट लिख के करो, बिकॉज अगर बुक ये बोलती है कि कुछ चीजें लिख के करनी है, तो ये सारी साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से रिसर्च्ड फैक्ट्स होते हैं। अगर कोई चीज है कि मन में बोल के भी ये कर सकते हैं, तो फिर वी कैन गो बाय दैट, है ना। ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे हम जो किताबों में लिखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एफर्मेशंस भी तभी वर्क करते हैं जब हमारा फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। अगर अलाइनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स के अलाइनमेंट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, इंजॉय, लव, ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। अगर इसमें रहेंगे तभी एफर्मेशंस भी वर्क करते हैं, अदरवाइज एफर्मेशंस डोंट वर्क, ठीक है। और जो काम कर रहे हो उसमें पूरे मोमेंट पे रहो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब सेशन चल रहा होता है तो वो अपनी ब्लेसिंग लिख रहे होते हैं। इट विल नॉट वर्क, इट विल वर्क बट इट विल, अगर 6 महीने लगने होंगे तो आपके 2 साल 6 महीने लगेंगे, है ना। बिकॉज आप न इसको 100% दे रहे हो, न उसको 100% दे रहे हो। सो टाइम सेविंग टूल नहीं होता है ये। अगर किताब में एक एक लाइन को च्यू करके पढ़ना होता है, अगर वाकई जिंदगी बदलनी होती है, तो एक एक लाइन हमको सुननी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए मैं भी जब बोलती हूँ तो वो एक एक लाइन मेरी मिस हो जाती है, क्योंकि मैं पूरा पैराग्राफ, मतलब पूरा टॉपिक एक बार में समझाती हूँ। सो एवरी डे विदाउट फेल आई लिसन टू माई यूट्यूब अगेन, बिकॉज आपकी तरह मैं सुन नहीं पाती अपने आप को, क्योंकि मैं बोल रही होती हूँ उस टाइम,
ठीक है, तो मैं दोबारा सुनती हूँ, और जहां जहां से मुझे अपने नोट्स बनाने होते हैं या कोई ऐसी बात होती है जो हाईलाइट करनी होती है, आई राइट देम इन अनदर कॉपी. I have a copy for that. Here, it is here. It is a copy where I write my own notes जो मैंने सुबह बताया होता है, because I have to eventually do it. Right? So it is like that. अगर सेशन सुनते सुनते अगर आप लिख रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, so you're wasting your time. Don't do it. It will not work. This will also not work and that will not. So हर चीज में कहते हैं ना, power of now में give 200% into your now. है ना? अगर आप मजे कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, 100% उसमें टाइम दो. अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, होमवर्क करा रहे हो, आप 100% उसको टाइम दो उस टाइम. है ना? अगर आप डिनर के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बाहर गए हो, तो 100% टाइम दो. अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो 100% अटेंशन दो उसको. है ना? अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो 100% दो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पावर ऑफ नाउ. और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक हाथ टॉली की किताब पढ़ लेना, द पावर ऑफ नाउ. ये यूट्यूब पे भी है ऑडियो बुक के फॉर्म में. आई डोंट नो वेदर ये हिंदी में ट्रांसलेटेड है कि नहीं है, बट इंग्लिश में डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने भी जब इसको 5वीं 6ठी बार पढ़ा था तो मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ा था. फर्स्ट टाइम अराउंड, ऑफ कोर्स, लाइक आई हैव 2 ऑफ दीज बुक्स, द सेम बुक. सो इट वाज सो, एक बार मुझे मिल नहीं रही थी, मैंने दोबारा ऑर्डर करी है, बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट किताब है. सो ये सब हमारे मैनुअल्स एंड टूल्स होते हैं. एंड बीइंग इन द नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. है ना? क्रिएट टाइम फॉर थिंग्स दैट नीड यू टू ग्रो. सो वही जॉन सी मैक्सवेल वाली बात, that to do what I want to do, are you ready to do what I did? Because that's a journey we need to scale here. And let's see this. So are you, isme likha hua hai na, are you ready for the exciting adventure of the magic book? So yes, we are more than ready. We really want to enjoy the best of life. So yeah, let's continue reading The Grace Mysteries Revealed. Hanji. A great mystery is revealed. Yeah, so we can see a book or a text here. That's what it is like. Yeah. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him. I unquote. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to this mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe.
I unquote. It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and Quran apply to you in your life. They're describing a fundamental law of science and of that universe. या सो दिस इज अबाउट हम कोई भी रिलीजन, ये कोई रिलीजन तो है नहीं, है ना, ये तो लॉज हैं जो सारे रिलीजन्स बोलते हैं एक ही चीज. ऑल द रिलीजन्स टॉक अबाउट लव, ग्रैटिट्यूड. All of them have talked about love, gratitude, and service to people. Love, gratitude, service to people. Unconditional love, gratitude, service to people. This is all we are here for. और कोई reason नहीं है human beings का धरती पे आने का. ठीक है, सबको ही बड़े काम करना है, सबको ही एक अपना पर्पस सॉल्व करना है, जिस भी तरीके से वो करते हैं. तो इसमें जैसे लिखा हुआ है शुरू में कि सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, और ऑफ कोर्स लाइक गॉस्पेल द मैथ्यू ने ये लिखा हुआ था कि whoever has dash will be given more and whoever does not have dash, even what he or she has will be taken off. So वो dash क्या है, वो वर्ड शुरू में डिकोड नहीं किया था, मतलब सेंटेंस ऐसे ही लिखा था, तो वो डिकोड किया तो पता लगा कि it was gratitude. So whoever has gratitude will be given more. Okay, and if you don't have gratitude, even what you have will be taken back. That means no complaining mode, come what may. जो चीज मिल रही है अगर वो उस वक्त अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड तो दिल से निकल ही जाएगा अच्छी चीजों के लिए. और अगर वो चीज अच्छी नहीं लग रही है तब भी हमको ग्रैटिट्यूड करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स का बहुत बड़ा प्लान होता है उसके पीछे. तो जब भी कोई चीज वर्क नहीं कर रही है तो इसका मतलब है, मतलब हमारी लाइफ का कभी कभी पर्पस होता है, उस पर्पस के लिए हमको नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना पड़ता है. अपने आप यूनिवर्स, हम तो हुक्ड होते हैं ना, हमको पता नहीं होता है कि लाइक ये पर्सन या ये सिचुएशन हमको नेगेटिव जोन में लेके जा रही है. जैसे ही वो सिचुएशन हटती है उस वक्त हमको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो नहीं सोचा था, मेरी ये जॉब कैसे छूट गई, मेरा ये बिजनेस क्यों नहीं चला, ऑल दैट. बट द यूनिवर्स हैज अ बिगर प्लान फॉर अस. फिर विद इन नो टाइम आपको समझ में आ जाता है जब आप पीछे मुड़ के देखते हो कि अच्छा अगर ये नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती या मेरा ये वाला बिजनेस नहीं होता, या आई कुड नेवर हैव हैड माय ब्रांचेस इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या मैं इतना खुश नहीं होता. ये सारी चीजें हमको डेफिनेटली पता लगती है, बिकॉज कुछ चीज अगर नहीं हो रही है इसका मतलब है यूनिवर्स हैज अ बेटर प्लान फॉर यू. बुरे के लिए कभी कुछ नहीं होता है, दैट्स वेरी वेरी क्लियर. तो इसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कोई चीज नहीं वर्क कर रही है, जैसे अगर हम बीमार भी पड़ते हैं ना तो हमको कुछ लेसन मिल रहा है. हमको लेसन ये मिल रहा है कि तुम ओवर थिंकिंग करना छोड़ो, है ना, समझ जाओ पहली बार में तो बहुत अच्छा है, नहीं समझते तो वो बीमारी अलग अलग रूप में आती रहती है. तो सारे इमोशनली हमको स्ट्रांग बनाने के लिए, हेल्थ ऑलवेज हैज एन इमोशनल रीजन. गुड हेल्थ विल ऑल्सो हैव एन इमोशनल रीजन, दैट अगर आप मेंटली बहुत खुश रहते हो, यू सरेंडर टू द यूनिवर्स, आप अपने आप को हैप्पी जोन में रखते हो, ग्रेटफुल जोन में रखते हो, तो हेल्थ अच्छी होती है. अगर कंप्लेनिंग या फिर ओवर थिंकिंग की आदत होती है, टू मच टेंशन, टू मच छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा चिंता करना, ठीक है, इसका मतलब है वो सारी हेल्थ में निकलती है. फिर वरी बहुत ज्यादा होती है, किसी चीज को लेके फियर होता है, एंड सिंपली एंड बैड लाइफस्टाइल. बैड लाइफस्टाइल मतलब लेट सोने की आदत, उल्टा पुल्टा खाना खाते जा रहे हैं, लाइक दैट्स कॉल्ड अब्यूजिंग योर बॉडी एंड योर लाइफ. अगर पूरे टाइम ऐसे जंक फूड और ये एंड हैविंग दोज डिफरेंट बेवरेजेस और समथिंग लाइक दैट कॉन्स्टेंटली पीना, इसका मतलब है यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करेगा कि ये आदत छोड़ दो, तभी जाके आगे ग्रोथ होगी. अगर पहली बार में समझ जाते हैं कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स वाला चैप्टर है ना, सो अगर उसमें सीख जाते हैं तो आगे वो दिक्कत नहीं आती है. नहीं सीखते हैं तो स्ट्रगल चलता रहेगा, बिकॉज यूनिवर्स का कंपैशन यही होता है कि आपको हर पनिशमेंट और बड़े रूप में आता है, जब तक कि हम उसे सीख नहीं जाए दैट आई नीड टू मेंड माय वेज नाउ. ओके, जैसे किसी को जैसे बहुत गॉसिप करने की अगर आदत है तो दैट पर्सन विल लैंड इन सो मच ट्रबल दैट उसकी जॉब ही चली जाएगी, बिकॉज वो बात इतनी बढ़ गई थी. ठीक है, छोटी छोटी गॉसिप से शुरू किया था, बढ़ती गई, किसी और के बारे में ऐसा बोल दिया कभी पीछे से वेयर इट मैटर्ड सो मच, एंड द पर्सन कैन इवन लूज द जॉब बिकॉज ऑफ दैट गॉसिपिंग बिहेवियर.
है ना. सो यूनिवर्स ने बहुत बार, मतलब बहुत बार पीछे फंसे, एनकाउंटर्स हुए, कन्फ्रंटेशंस ऑफिस में हुए होंगे, नहीं जब समझ में आया, ठीक है, उसके बाद वो लेवल पहुंच गया कि जहाँ पे the punishment is just got a little more severe. So this is what we need to learn and grow. So hence having gratitude is very, very important because we want more, right? जैसे कुरान में इसमें लिखा हुआ है ना पीछे, I'll just take you to that. Yeah, so it says Quran में ये लिखा हुआ है, and remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. So हमने punishment लिए हैं अपनी जिंदगी में, definitely. जो हमारे environment में circumstance में हो रहा है, अगर हमारा business नहीं चल रहा था, अगर हमारी health नहीं ठीक चल रही थी, तो वो punishment था, ठीक है, हमारे लिए. लेकिन हम सीख गए ना, अब तो नहीं है ऐसा. आई रिमेम्बर द टाइम जब मुझे इतना माइग्रेन होता था, मतलब माइग्रेन हेडेक्स, और इतना ट्रैवल का मेरा काम. सो आई वुड टेक अ मॉर्निंग फ्लाइट एंड गो टू अनदर सिटी. वहां पे जाके आई रिमेम्बर वंस आई वाज इन बैंगलोर, आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली, माइग्रेन अटैक मुझे शुरू हो गया वहां पहुंचते ही, और मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी और मेरे पास इतना सारा काम था, ठीक है. I landed up in a hospital called Manipal Hospital, which is near the old airport road, HL airport road पे, ठीक है. I landed up being there because I had no choice. मेरा office old airport road वाले से काम कर, we have like of course 4 offices in Bangalore, but yeah, I was working from old airport road office that time. So उसी के पास में hospital है, I had to be there. और it was a very constant recurrence, मतलब बार बार होता था. So people who have migraine know, and I don't know in today's time what a headache means. मतलब totally that इतनी प्रॉब्लम मतलब बहुत टाइम से चल रही थी मेरी लाइफ में, like माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा था. इट जस्ट डिसिपेटेड, जैसे ये सेशन शुरू हुए, मुझे पता नहीं है कि अभी हेडेक क्या होता है. इस तरह से वो इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम भी ठीक हो गई ना, और वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती. इट्स अ नर्वस डिसऑर्डर, है ना. माइग्रेन इज नॉट कि आप सोए नहीं हो या जो भी है उस वजह से होता है. सो इट इज अ नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर. एंड नर्वस सिस्टम में जब ग्रैटिट्यूड आने लग गया तो सारी बीमारियां चली गई अपने आप से, जो ऐसी छोटी मोटी चीजें जो होती रहती थी, एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ एंड लाइफ हैज बिकम सो स्मूथ एंड इट्स ओनली गेटिंग बेटर एंड बेटर. अगर मैं अपने 1 साल में देखूं that how I have grown in person, it's like there's been a tremendous growth, amazing opportunities, lots of love and appreciation, new things that have come, the health has gotten better, my skin and my hair have become so, I was struggling with hair fall and things like that. There was a time when just going to a dermat and saying that what can I do for, I really want to grow and have nice hair, and everything fell into place with gratitude. So that's why it says that gratitude is the biggest antitoxin and antiseptic and antibacterial and antiviral, and it is an anti-aging cream. It is like a face serum and a hair serum and everything else, because at the moment you're thankful, you see all these automated changes happening in your life. Automatically हमारी जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाते हैं. जिस पर्सन से हमें ऐसे बात भी नहीं होती थी, हमें अच्छा नहीं लगता था किसी बात करने, वो पर्सन आके कहता है that I really want to talk to you and I really follow you, and like admiration के साथ पता नहीं क्या क्या होता रहता है ना, जब हम gratitude की जर्नी में होते हैं. So let's do that more and more and share amazing experiences and share them with each other. It's very important. There's nothing like नजर लग जाएगी. इस ग्रुप में जो है उनको पता है कि अगर आपने किसी को बैड वाइब्स दी तो आपकी जिंदगी विल बी द एंड, बिकॉज उसके बाद इसीलिए कोई ये नहीं करेगा ऐसा. और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ एक दूसरे को अपलिफ्ट और एनकरेज करने के लिए होती है. अगर आपने कोई प्रैक्टिस की है जिसकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल रही है, उस सारा बेनिफिट उसका आपकी लाइफ में आएगा. दूसरे की तो लाइफ में आया ही है, आपकी लाइफ में खूब मल्टीप्लाई होके ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना. So be very freely share. So there's so many people who've sent me messages, victories in the last few days, but I don't know whether I can post it unless you tell me to. So if you say that, yeah, I can share it with people, but जब भी ऐसा हो तो आपको practices लिखनी जरूरी है कि आपने क्या क्या किया था उसके लिए,
है ना। प्रैक्टिसेस लिखनी जरूरी है, जैसे अगर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी मैंने इंजॉय की है तो मैंने इंस्पायर्ड एक्शन भी लिए है प्लस प्रैक्टिसेस की है। प्रैक्टिसेस तो ये सारी होती हैं, कम से कम 8 से 9 प्रैक्टिस मैं रोज करती हूँ। आई डोंट डू मोर देन दैट बिकॉज माई वर्क आवर्स आर वेरी लॉन्ग, बट 8 से 9 प्रैक्टिस डेली मेरी रिचुअल है। ठीक है, there's no doubt about it. Generosity when it comes to money, I do that a lot. You know, like I never give the bill as it is. Like if the bill is 450 rupees, I always give 500. If the bill is 500, I give 520. If the bill is 920, I give 1000 rupees. And that is how my money has grown in life. So this is also the practice that I've done. Other than जो book बोलती है कि थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी, यू नो, थैंक यू पेड तो होता ही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। सो ये पैसे के रूप में जहाँ पे भी मैं किसी की एनकरेज करके भी हेल्प कर सकती हूँ, वहां मैं जितना मुझसे हो पाता है उतना करती हूँ। सो इस तरह से ट्राइंग टू ऑलवेज पुशिंग द लिमिट्स एंड डूइंग मोर ऑफ द प्रैक्टिसेस दैट आई डू। ठीक है, एंड ऑन एन एवरेज एज आई मेंशन 9 to 10 प्रैक्टिसेस मेरी ऑलमोस्ट डेली होती है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू grow forward and help each other and encourage each other. ठीक है, this is also one of the tools कि किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे, और कोई छोटी वो नहीं होती विक्ट्री, बड़ी विक्ट्री। छोटी विक्ट्री क्या है, अगर आप हमेशा से सुबह 6 बजे सो के उठते थे और आप 5:30 उठने लगे हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको छोटी नहीं बोलते हैं। क्योंकि आपने रात में मैन्यूवरिंग की होगी अपने इवनिंग टाइम में, यू नो, 100 थिंग्स यू नीड टू डू टू बी एबल टू स्लीप बाय 9-9:30। इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन। बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लोगों की लाइफ में, है ना। और शाम का टाइम ऐसे होता है, फिर समझ में आता है अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सारी वो चीजें पहले भी हो सकती हैं, हाफ ऑफ देम आर यू नो लाइक अनकॉल्ड फॉर, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। सो कोई छोटी विक्ट्री नहीं होती है। प्लीज शेयर मोर एंड यू नो लेट्स वॉक दिस पाथ। जो सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ने हमको बोला है, सारे रिलीजन एक ही चीज बोलते हैं, मतलब मैंने तो सब कुछ बहुत कोर में पढ़ा हुआ है। कुरान हमारे घर में हमेशा रहती है, बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं कुरान की। देन ऑफ कोर्स लाइक बाइबल तो बचपन से हमको पढ़नी मैंडेटरी थी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ क्रिश्चियन स्कूल। हिंदू मैं हूँ तो हिंदू स्क्रिप्चर्स और वो सब तो होता ही है, मतलब उसके बाद वो तो पढ़ना हमारे बचपन से ही चल रहा है। सो दैट इज how it's been, you know, and of course Buddhism मैं practice करती ही हूँ, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट सारे बहुत अच्छे से, मतलब बहुत सालों से कर रही हूँ, 2005 से। So all those, everyone, every religion, every book says the same thing: love, gratitude, service. So let's just do it. And this is, it says that this is the fundamental law of science of the universe. It's not spiritual and religious, they are all scientific. हाँ जी। It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. But if you think about what you're grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son.
and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is the universal law. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. Now, this means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Yeah, thank you, Dishant. This is all we'll be able to do in this book today. Thank you so much for reading. एक बार Baston की बोलो तुम. Next time. Okay. So this is the affirmation वाला topic, है ना? कि जो चीज आप बोलते हो रिपीटेडली वो आप एफर्म कर देते हो, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में वो जाके सेटल डाउन हो जाता है और उसको लेयर करते रहो, उसके बाद एक ही चीज उसके बाद जस्ट कीप लेयरिंग इट. जैसे माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, सो इन केस योर फैमिली इज नॉट वेरी सपोर्टिव राइट नाउ एंड यू फील दैट दे आर द रीजन कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ अपनी जिंदगी में क्योंकि मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं है, सब मुझे पुल डाउन करते रहते हैं. सो आपको ये बोलना पड़ेगा, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, बिकॉज ये यूनिवर्सल लॉ है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो रिपीटेडली, वो सही हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, इट बिकम्स ट्रू एंड यू विल सी दैट वो आपकी जिंदगी में हो जाता है. तो इसीलिए डोमिनेंट थॉट्स क्या होते हैं? रिपीटेड थॉट्स. सो रिपीटेड थॉट्स, एक बार ऐसे बोल दिया तो इट माइट जस्ट नॉट, लेकिन अगर इमोशन में एक ही बार बोला है तब भी वो हो जाता है. दिस इज हाउ इट इज. सो इसीलिए जो रिपीटेड थॉट पैटर्न, वो पैटर्न बना लेते हैं. रिपीटेड थॉट्स और रिपीटेड वर्ड्स, ये पैटर्न बन जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जिसके कारण आप उसको बहुत सून यू विल सी इट हैपनिंग बिफोर योर आईज. लाइक जैसे कोई भी, लाइक आई लव माई जॉब. सो अगर आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है अभी, ठीक है, और आप पूरे टाइम उसके बारे में सोचते रहते हो कि मेरे आवर्स कितने लंबे हो रहे हैं, मुझे इतना डिस्टेंस स्केल करना पड़ता है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे कोलीग्स मुझसे ठीक से बात नहीं करते, मेरा बॉस तो बहुत ही लाउजी है ना. अगर इस तरह की चीजें बोलते रहेंगे तो वो चीज बहुत एम्पलीफाई हो जाएंगी जिंदगी में एंड दे विल जस्ट बिकम बिगर एंड बिगर लाइक अ वाइल्ड फायर. बिकॉज जो एनर्जी आप किसी भी चीज को दे रहे हो, बिकॉज ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये लॉ है, वेदर वी बिलीव इट और वी डोंट. सो वट एवर इज आर डोमिनेंट थॉट, वट एवर आर द वर्ड्स जो हम रिपीटेडली बोलते हैं, वो सारे हकीकत बन जाते हैं. तो इसीलिए इसमें रोंडा पर ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर कोई चीज गड़बड़ भी हो रही है ना, उसको एनर्जी मत दो, उसको आप देखना क्या चाहते हो, आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, उस पे आप ध्यान दो, है ना. जैसे डॉक्टर जो विटाले ने अपनी बुक में वर्ड यूज किया, ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेट दैट एनर्जी.
जैसे इफ यू डोंट लाइक योर जॉब बट कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को फीलिंगली बोलो आई लव माई जॉब, आई लव द फैक्ट दैट सारे कोलीग्स मुझे सपोर्ट करते हैं, आई लव दैट माई बॉस इज सो अमेजिंग, आई एम रियली लविंग दैट मुझे बहुत अच्छे से। और बहुत अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो छोटी छोटी चीजों को पिक करो कि ठीक है मेरे ऑफिस में मेरे पास बैठने को चेयर है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव गॉट अ लैपटॉप जिसमें मैं काम करती हूँ, या डेस्कटॉप है आपका उसमें मैं काम करती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल दैट गर्म पानी और गर्म चाय पीने का प्रोविजन है मेरे ऑफिस में, है ना। कहीं से तो कुछ ढूंढना पड़ेगा, अगर ये नहीं निकल रहा आपको दिल से, अगर सपोज जॉब की तारीफ नहीं निकल रही है दिल से, तो छोटी छोटी चीजों को करो, बिकॉज वो भी बहुत एम्पलीफाई हो जाते हैं जिंदगी में। सो इसीलिए अपने रिपीटेड थॉट्स एंड वर्ड्स पे हमको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, एंड कीप a check and control on what you're doing, what you're speaking and how you're feeling. Okay, अपने इमोशंस को कंट्रोल, और ह्यूमन माइंड हाईली ट्रेनेबल होता है, आप उसको जिस मोल्ड में डालो वो उस मोल्ड को ले लेता है। तो इसीलिए बोल बोल के, इसी को तो हम एफर्मेशन बोलते हैं, एफर्म मतलब फर्म करना, कोई भी चीज को फर्म करना, दैट माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, आई हैड द बेस्ट वेकेशन, अभी तो वेकेशन पे गए भी नहीं है, अभी से ही बोल दिया आई हैड द बेस्ट वेकेशन, ठीक है। अपने आप यूनिवर्स विल मेक दैट वेकेशन द बेस्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज व्हाट वी डू। जब भी हम कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो बहुत सारा एफर्मेशन गया, अभी जब मैं आगरा से 1 दिन 1.5 दिन के लिए जाना था, बट बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग करी थी, और जैसी स्क्रिप्ट करी थी वर्ड बाय वर्ड वो वैसा ही हुआ। उसके पहले जब गोवा गए थे वर्ड बाय वर्ड वैसा ही हुआ, उसके पहले जब मैं थाईलैंड में थी जैसी स्क्रिप्टिंग की थी एग्जैक्टली उससे भी ज्यादा अच्छी हुई। मतलब इट वाज समथिंग जो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब इतनी भी अच्छी चीजें वहां पे हो सकती है, इतनी अच्छी जगह हो सकती है, या इतना अच्छा खाना हो सकता है, या इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। उसके पहले सिंगापुर के पहले पूरी स्क्रिप्टिंग की थी, बिट बाय बिट जो होती है ना डिटेलिंग, पहले से ही कर ली थी जाने के अपने आप। अब वो चीज जो आप लिख रहे हो फीलिंगली इमोशनली, वाओ देन आई वेंट देयर देन आई हैड सो मच फन, और इतना लाफ्टर था, मरीना बे सैंड्स का एक्सपीरियंस कितना अच्छा था, वहां से व्यू इतना स्टनिंग था, एंड एवरीबडी हु इज हियर फ्रॉम सिंगापुर, we were together and what a view we got, like amazing, and we went at a time जब थोड़ा डस्की सनसेट का टाइम था, तो वो सनसेट ऊपर से इतना सुंदर लग रहा था। सो दैट इज हाउ लाइफ इज, सो स्क्रिप्ट योर लाइफ इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बिकॉज हम बहुत ज्यादा उन चीजों की बातें करते हैं जो हमारी लाइफ में गलत चल रही हैं, कि मेरा ये भी चल रहा है, मुझे ये भी चल रहा है, मुझे ये भी चल रहा है, मेरी लाइफ में ये भी है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने आप ये प्रैक्टिस करो, अपने आप लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज इसमें सारे चारों एरियाज हैं जिंदगी के। इट हैज वर्क, इट हैज करियर, इट हैज हेल्थ एंड इट हैज रिलेशनशिप। इस पूरी बुक में ये चारों एरियाज हैं। अगर ये 4 गाड़ी के 4 व्हील्स अगर आपने बैलेंस कर लिए, है ना, तो अपने आप जो इससे बाकी की जो चीजें आती हैं, वो साइड डिशेस हैं सारी, वो सब डेफिनेटली आएंगे। जो मेन कोर्स को अपना ठीक रखो, जो ये 4 एरियाज हैं, और ये प्रैक्टिसेस हमको बहुत अच्छे से इन चारों एरियाज में जो भी नेगेटिव एनर्जी अभी तक हमारी थी उसको ये ऑटोमेटिकली ठीक करा देते हैं। So that is how it is. So don't talk about, I don't even want to read these, जो ऊपर लिखे हुए first paragraph में, child is a problem, I don't get along with my parents, my life is a, we don't want to read this also. We want to read this. I love my job. My family is very supporting. I had the best vacation. I got the biggest tax refund ever. ये बोल बोल के मेरा इस बार का tax refund इतना बड़ा आया, quite a few lakhs। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा CA इस तरह का tax refund ला के दे सकता है, so it was really amazing. Then I had a great weekend camping with my son, और जो भी चीज आपको है, because gratitude बहुत strong magnet होता है हमारी जिंदगी का। जैसे ही आपने किसी चीज को लव और ग्रेटिट्यूड, जैसे लाइक आई लव नाइस सॉफ्ट सिल्की हेयर, अगर आपने ये बोल दिया ना, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी, यू हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड दैट फ्रॉम द पैरेलल यूनिवर्स टू योर करंट रियलिटी। प्रोस्पेक्टिव रियलिटी से आपने उसको करंट रियलिटी आप बना लोगे बहुत जल्दी, अगर इस तरह से बोलेंगे। तो ये नहीं बोलना है बिल्कुल मेरे बाल झड़ रहे हैं, पहले तो मेरे बाल इतने थे, अभी मेरे आधे हो गए, मेरे शॉर्ट हो गए, मेरे वो हो गए। इट्स ओके, स्टार्ट फ्रॉम टुडे,
ठीक है, वी डोंट वांट टू लुक एट द पास्ट वेदर इट इज फॉर यू और वेदर इट इज माइन, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट। अच्छी चीजें, कोई बहुत प्यार वाली चीजें हैं तो उन पास्ट को याद करके खुश हो, जब ब्रिंगिंग स्माइल ऑन द फेस, देन इट्स ओके, बट वी डोंट वांट टू ड्वेल इन द पास्ट। ठीक है, जो हो गया, बाल झड़ने थे झड़ गए, आज से मुझे क्या करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू फर्मली बिलीव इन, बिकॉज every emotion, every thought and every word चुंबक की तरह आपकी जिंदगी में आएगा, because that's what it is written here, that it's very magnetic, है ना? It will come to our life, whether we want it, whether we believe it or we don't believe it, whether we keep sleeping in the morning, we don't want to do the assignments, but gratitude is, it continues to be magnetic in nature, and that's what it is. And it says that your gratitude is magnetic, so I'm reading it from the highlighted portion, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. इसका टॉपिक भी यही है, आइजैक न्यूटन ने यही बोला था, आप जो एनर्जी रेडिएट करोगे अपनी जिंदगी से, वो वापस मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी। जो आप सीड सो करोगे वैसा ही पेड़ बनेगा, ठीक है? एक सीड सो करोगे, उसमें से 1000 फ्रूट्स होंगे उसी टाइप के, है ना? अगर आप टॉक्सिक थॉट्स को प्लांट करोगे तो जिंदगी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ब्लेसिंग्स वाले थॉट्स आप प्लांट करोगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स जिंदगी में भरने लग जाएंगी, और ऐसी ऐसी जगह से ब्लेसिंग्स आएंगी जहां आपने सोचा भी नहीं था, है ना? So that's what it says, whatever goes around comes around. जो एनर्जी आपकी जिंदगी से रेडिएट हो रही है वो मल्टीप्लाई होके वापस आपकी जिंदगी में आएगी, बिकॉज वन इन ऑल एंड ऑल इज वन की लॉ है, ठीक है? एट द एनर्जी लेवल वी आर ऑल द सेम, इसीलिए कहते हैं कि अपने आप पे वर्क करो। You want to do big things in life, work on yourself, don't try to fix anyone else. So that is how it is. So Newton ने जो बोला था, every action has an opposite and equal reaction. That is how it is. So that's it. So इसीलिए first always give. When you give, you will receive it. First you have to give. This is also the law. ठीक है? अगर आपको बहुत इज्जत चाहिए अपनी जिंदगी में, इज्जत शोहरत चाहिए, तो आप लोगों के बारे में अच्छी चीजें हाईलाइट करके बोलो अपने मुंह से, ठीक है? इज्जत दो तो आपको वापस मल्टीप्लाई होकर आपको जिंदगी में मिलेगी। अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको पहले खर्च करने पड़ेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में आएंगे। इट इज वेरी सिंपल, यू नो, वॉट एवर इट इज। अगर करियर में आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप पहले करियर को अपना 200% दो। लोग हमेशा शॉर्टकट लेते हैं वर्क प्लेस पे, ये मैंने देखा है, ये तुम कर लो, ये वैसे कर लो, ये वैसे कर लो, यू नो, शॉर्टकट लेने की कोशिश करना कि किस तरह बस काम निपट जाए और शाम हो जाए, मैं बैग उठा के घर जाऊं, ठीक है? तो उस तरह के एटीट्यूड के साथ, सो whatever people do in private is applauded in public, you know that? I mean, this is a saying I've read over and over and over again. Whatever you're doing in private is what will be applauded in public. ठीक है? जब कोई नहीं देख रहा होता है उस वक्त आप क्या कर रहे हो? Are you sitting and watching a movie on your laptop? You are at office and office में कोई भी नहीं, आप अकेले हो, you know, किसी दिन, और आप उस वक्त मूवी देख रहे हो, आप अपनी फ्रेंड से घंटों घंटों फोन पे बात कर रहे हो, ऑफिस आपको सैलरी दे रहा है उस बात की, ठीक है? घंटों घंटों आप फोन पे बात कर रहे हो, फालतू की चीजें कर रहे हो, यू नो, जो बिल्कुल डी ग्रोथ करती है। तो वट एवर यूर डूइंग इन प्राइवेट विल बी अपलोडेड इन द पब्लिक, यू विल गेट इट बैक इन पब्लिक, दैट इज हाउ इट इज। इसीलिए you know, like you don't have to think about, you know, कि सबके कई होते हैं लोग, है ना, दिखाने के लिए काम करते हैं, देखो मैंने किया, देखो मैंने ऐसा किया, देखो मैंने ऑफिस में इतना ग्रोथ लाया, देखो मैंने ऐसे किया। कोई जरूरत नहीं है, you know, between you and the universe there is nobody. इंक्रीमेंट, अप्रेजल, पैसे ज्यादा आना, बिजनेस ग्रो करना, ये सब ऊपर वाले का काम होता है, ठीक है? ये कोई इंसान नहीं करता है। तो अगर आपका अप्रेजल नहीं हुआ है तो वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मनी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ थी, ठीक है? जिनकी मनी फ्रीक्वेंसी अच्छी थी उन सबका अप्रेजल हो गया, चाहे वो कैसे भी इंसान थे, ठीक है? उनकी मनी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी थी। हमको क्या पता प्राइवेट लाइफ में वो अपने माँ बाप की बहुत सेवा करते हो, हमको नहीं पता ना। हमको बस ये दिख रहा है कि उसका 20% हुआ और मेरा सिर्फ 8% हुआ। वो 20% डिजर्व करता था, बिना डिजर्विंग के किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो जो कॉज किए उसका इफेक्ट मिलेगा, और वो सारा ऊपर वाले से मिलता है, बॉस से नहीं मिलता, ठीक है? तो इसलिए स्टॉप ब्लेमिंग द बॉस फॉर द वर्क, द प्रॉब्लम लाइज विद इन अस, चेंज आवरसेल्व्स, वी विल सी दैट बाहर की चीजें अपने आप बदलने लग जाएगी, और ये प्रैक्टिस जब करेंगे तो हमको रियलाइज होगा। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो या give more love, give more gratitude, and you will definitely get much more in life, multiplied several times. That's how we get it back.
So this we'll do tomorrow, The Golden Thread of Gratitude. Now we'll go to the other book, which is The Hero by Rhonda Byrne. Again, and इसमें हम GM Rao का पढ़ते हैं. We are all talking about the struggle. So yes, Raman is reading for us. Good morning, everyone. Good Good morning, morning. ma'am. GM Rao. The course of my journey in business has been like the flow of a river, where each obstacle made me change course, eventually to reach my destination. All my life has been full of challenges. Each challenge was a meaningful coincidence and opened a door to a bigger opportunity. Yeah, that's how it works. इसीलिए कोई भी डिफिकल्टी आ रही है ना, इसका मतलब है कि वो ग्रोथ हमारे लिए जरूरी थी उस वक्त, और ये बाद में रियलाइज होगा. उस वक्त लगता है कि ये क्या है, मतलब थिंग्स आर नॉट वर्किंग, आई एम सल्किंग, सिटिंग एंड सल्किंग एंड ऑल दैट, ब्रूडिंग अबाउट इट. नो, बट इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेल यू कि इस रास्ते से आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे. तो यूनिवर्स का तरीका प्रॉब्लम देने का यही होता है. प्रॉब्लम दी है, इसका मतलब है चेंज द कोर्स ऑफ समथिंग. मे बी स्ट्रैटेजी ए वर्क नहीं कर रही है, आपको स्ट्रैटेजी बी करनी है. ठीक है, इस तरीके से. अगर कोई इंसान बार बार आपको, मतलब कोई चीट कर रहा है, अपने आप लाइक कुछ चीजें होने लग जाएंगी, डिफरेंसेस, और वो पर्सन निकल जाएगा. उस वक्त हमको बड़ा दुख होता है कि देखो हम 2 पार्टनर्स थे, हमने सब कुछ साथ में शुरू किया, वाई हैज द फॉल आउट हैपेंड, क्यों हुआ ये. लेकिन उसका बहुत बड़ा रीजन होता है. ठीक है, दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. सो इसीलिए embrace the problems and make peace with where you are right now, because बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आने वाली होती है. हाँ जी. John Paul DeJoria. From challenges and obstacles, we gain a full education, and it's part of our success. So many times in life, things have happened and they didn't go the way I wanted to. But through it, I realized, had I not gone through this, later on in life, I wouldn't be as happy or successful as I am right now. There are things in life that are going to happen, but these will be lessons that take you on to your ultimate reward. If I reflect back on my journey, the obstacles and challenges I faced were nothing compared to the obstacles and challenges I faced in my life before I decided to follow my dream. When you have a purpose and you are following your dream, obstacles and challenges don't seem as difficult or as hard as they do when you have no purpose at all. Without a purpose, challenges or obstacles can appear to have no reason and simply feel like bad luck. However, they do have a purpose because you have to evolve. And so, even if you try to hide from life, you will still face challenges and obstacles. तो अगर लाइफ में पर्पस है, इसीलिए ड्रीम्स एंड गोल्स होने बहुत जरूरी है. अगर नहीं है तो उनके बारे में सोचना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत जरूरी है. नहीं तो वो तो एमलेस लाइफ है ना. आई मीन लाइक जैसे कोई स्ट्रे डॉग है ना, उनका क्या पर्पस है कि बस आज का खाना मिल जाए, जब नींद आ रही है तो सो जाओ, जब नींद खुल गई है तो बस उठ जाओ, जब किसी स्ट्रेंजर को देखो तो भाग करो, या अपनी लाइफ को थ्रेट हो रहा है तो भाग करो और खाने का जुगाड़ करो. बस यही तो लाइफ होगी. अगर उस लाइफ में क्या ही ऑब्स्टिकल होगा, है ना कहीं से तो खाना मिल ही जाएगा. कभी डस्टबिन से मिल जाता है उनको, कभी कहीं से, कभी इधर उधर से. People throw things on the road. So we don't want to live that kind of a life, no. Human beings are much more evolved, जो इसमें लिखा हुआ है. That evolved word is mentioned here. Have a purpose in life. Have your dreams and goals. Be the best version of yourself. Look your best.
like enjoy the best of health. जो चीजें पसंद आती है वो करो. पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने अच्छा लगता है. आपको बिजनेस में एक स्पेसिफिक टारगेट है कि मुझे 10 करोड़ की कंपनी टर्नओवर चाहिए सपोज एनुअली, या 100 करोड़ का टर्नओवर चाहिए. प्लीज अचीव करो. यही तो रीजन है कि हम सुबह सुबह उठ के सब स्टडी करते हैं साथ में. हम में से बहुत लोगों ने वो, मतलब मेरे वो सारे टारगेट्स पूरे हो गए जो मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट ड्रीम लिस्ट में लिखे थे. सेकंड ड्रीम लिस्ट में भी, सेकंड ड्रीम लिस्ट भी पूरी हो गई है. फर्स्ट टाइम की भी हुई है, ऑल 10 ऑफ देम. सेकंड की भी ऑल 10 ऑफ देम. सो जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाते हैं वैसे ही नया टारगेट आ जाता है आगे का, है ना. जैसे कभी भी किसी ने जैसे आपको एक घर खरीदना था, आपने खरीद लिया. अब आपको लग रहा है कि अपने पेरेंट्स के लिए भी एक खरीद के दो, क्योंकि आपने देखा है कि माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया था जिंदगी में और आपको इस लायक बनाया कि पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिया कि अब आप अपने पैरों पे खड़े हो, एंड देन यू डूइंग सो वेल फॉर योरसेल्फ, राइट, एंड यू कुड इजीली बाय दैट हाउस. अब जब आपकी सारी EMIs उसके लिए पे हो जाती हैं, सब हो जाता है, या आपके पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और उसको पूरा पे बैक कर देते हो अपना लोन, उसके बाद आपको लगता है कि चलो अब एक बेडरूम का एक और घर कहीं पे खरीद लेते हैं जहाँ पे पेरेंट्स रहेंगे, या उनके नाम से कर लें ताकि उनको सिक्योरिटी रहे, है ना. क्योंकि अभी तक शायद प्रॉपर्टी का इधर उधर कुछ चल रहा था घर में विच वॉज नॉट दैट प्लेजेंट, और आपको भी बुरा लग रहा था दैट आई हैव नॉट बिन गिवन माई फेयर शेयर, है ना. कई बार ऐसा लगता है हमको, आउट ऑफ ग्रीड, हमें लगता है कि सब दे दें, रेडीमेड मिल जाए, हमको मेहनत ना करनी पड़े. इसका मतलब है हमने लॉ ऑफ यूनिवर्स को तो समझा ही नहीं है. आपको बस यूनिवर्स से एक लग्जूरियस हाउस मांगना होता है. आपको बहुत प्रिसीजन के साथ मांगना है तो आप ये भी बताओ कि उस वाली सिटी में चाहिए, उस कॉलोनी में चाहिए. सुबह जब सनराइज हो तो मेरे घर के अंदर दैट द रेज ऑफ द सन शुड कम इनसाइड माय हाउस, and it should be within my budget, and universe also please give me the money so that I can easily buy that house. ठीक है, that's all you need to do. Ask, now believe. Every day say thank you universe for giving me my dream house, thank you so much. और अपने आप को हैप्पी फ्रीक्वेंसी में रखो. जैसे ही फ्रीक्वेंसी डिप हो रही है, आपको पता लग रहा है कि इमोशनली आप नीचे जा रहे हो, आप सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, बस ये लिखते जाओ, बोलते जाओ, मन में ये चीज लाते जाओ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे जा ही नहीं पाएगी. हाई फ्रीक्वेंसी में क्रिएशन का प्रोसेस होता है. सो अगर अपनी जिंदगी की लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट करनी है, हाई फ्रीक्वेंसी में क्रिएशन होती है. हाई फ्रीक्वेंसी में आपके हाथ में वो स्लेट होती है जिसपे आप अपनी डेस्टिनी लिखो. लो फ्रीक्वेंसी में सर्वाइवल मोड होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, जहां पे हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं. बॉडी भी डील कर रही है, इमोशनली मेंटली भी आप डील करने की कोशिश कर रहे हो. उसमें क्रिएशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन. क्रिएट नहीं कर सकते आप कुछ भी. क्रिएशन आपको हाई फ्रीक्वेंसी जोन में ही होता है. सो डू दैट मोर. और वो होगा जब हैप्पीनेस मोमेंट को मिल्क करो. मैंने अब्राहम हिक्स के वीडियो से ये सुना है, समझा है, सीखा है और अप्लाई किया है कि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में होते हो, मिल्क दैट मोमेंट. इसका मतलब होता है उस वक्त अपने लाइफ की स्क्रिप्ट करो, लिखो, सोचो, बोलो. जब आप हैप्पीनेस के जोन में होते हो, जैसे मन बहुत खुश है सपोज, या यू कम बैक वेरी हैप्पी, मिल्क दैट मोमेंट. उस मोमेंट में आप जो अपने लाइफ की स्क्रिप्ट लिखोगे वो सही हो जाएगी. यू विल सी दैट हैपनिंग इन योर लाइफ. सो कीप योरसेल्फ, एंड एज आई मेंशन्ड दैट ह्यूमन माइंड बहुत ट्रेनेबल होता है. आप, और जिस तरह से आप ट्रेन करोगे वो उसकी आदत पड़ जाती है. अगर आपने अपने आप को हैप्पीनेस के जोन में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ रखना सीख लिया, तो आपकी हैप्पीनेस इज माई हैबिट नाउ, ये वाला एफर्मेशन सही हो जाता है. Because you keep telling this to yourself, happiness is my habit now. और जब भी आप डिप करते हो, आप अपने आप को दोबारा से यही बोलते हो, हैप्पीनेस इज माई हैबिट नाउ. क्योंकि आपको ये पता है फीलिंग चार्ट के हिसाब से कि आपको ऊपर की 5-6 फीलिंग्स में रहना मैंडेटरी है. तभी क्रिएशन का प्रोसेस होगा और तभी जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव आउटकम आएंगे. और नेगेटिव भी आएंगे तो वो डेफिनेटली हमको हेल्प करते हैं, थ्रस्ट करते हैं, प्रोपेल करते हैं टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड अहेड, ऑनवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है, these are the 3 words I use very often. So you have to go onwards, upwards and forward. You're not looking back in your life. I don't allow you to do that. And the only option that you have in your life is, creating the life of your dreams, flourishing and thriving. So in everything that you want to achieve in your life, पैसा, इज्जत, वर्ल्ड ट्रैवल करना है आपको, कोई NGO खोलना है, लोगों की मदद करनी है, पेरेंट्स को घर खरीद के देना है, जो भी आपको करना है, दैट्स फ्लरिशिंग एंड थ्राइविंग.
And these are the only options we have. And when we diligently follow the practices, तो जब सपने बहुत बड़े होते हैं तो सोने का टाइम नहीं होता है ना? जब सपने बहुत बड़े होते हैं तो सोने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि इट्स नॉट दैट सपने आप देखो जितना आपने सोचा हुआ है, डोंट थिंक दैट they should, like there should always be a constant fire. When there is a fire that this is what I want to achieve in life, no matter what, तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता. फिर अपॉर्चुनिटीज या challenges भी आते हैं, obstacles भी आते हैं, तो लगता है this is just, it's just a phase, it's a very small phase, it's trying to tell me something. उस वक्त भी यूनिवर्स से पूछो कि आपको वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है. यू विल नॉट बिलीव, आपके सामने अगर वो सेम एकदम से उसके बाद या कहीं कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा आपके पास. अगर आप यूनिवर्स से पूछोगे ना, मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ और ये क्यों चल रहा है, मुझे इसका आंसर दो, व्हाट इज दैट बिग रीजन इसके पीछे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला फेज, मुझे बताओ इसमें क्या अच्छा छुपा हुआ है. ठीक है, एंड यू विल गेट दैट आंसर. Ask questions to the universe, talk more to the universe, make universe your best friend, lean on that. If you want, you can meditate, you can do Ho'oponopono, whatever it is. Okay, but try to keep yourself in the high frequency zone. बहुत बार आपको fake करना पड़ेगा इसके लिए, but just fake it till you make it. Okay, it really doesn't matter. And that's the only way to grow forward. That is the only way I have moved forward in my life, and I'm constantly growing. There are opportunities, there are happiness, there are moments of joy. There's an amazing good quality sleep, there's great work that I'm getting to do through my work, because I constantly keep racking my brain and asking, how can I add value through my work? How can I add value through my work? How can I use my communication to touch others' lives? And then I get opportunities to do all of that. So, ऐसे बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज, मतलब मैं जानती भी नहीं उन लोगों को. Suddenly किसका फोन आता है that can you just address our people, like our students from different universities. I don't even know about them, but it just happens because universe has a bigger plan for us. हमको how सोचना नहीं होता, बस आप मांगो, ask, believe and receive, and that is all. And that's all we'll be able to read today. Thank you so much, Raman, for reading so beautifully. आपकी आवाज इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है, मैं आज यही सोच रही थी. Thank you so much, ma'am. Means a lot. Thank you. Thank you so much. हाँ जी, सुनैना मैडम, hand raised है. हाय तुम्हारी हेलो गुड इवनिंग, एवरीवन. हमारी गुड मॉर्निंग. हाँ मेरी गुड इवनिंग. एक्चुअली एक बहुत पावरफुल शेयरिंग करनी थी मैंने. मैं 2014 में आई गॉट सिक. आई थिंक सबको ऑलमोस्ट पता ही है. तो इट्स लाइक कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट अब तो 10 साल हो गए ना. तो मैं मॉर्निंग उठ जाती थी, बट अगर प्रिया इसमें है, अगर प्रिया इज देयर, प्रिया नोज अबाउट दिस थिंग, कि मैं मॉर्निंग तो उठ जाती थी लाइक 3:34, लेकिन ना मेरा एक नैप होता था लाइक 9 to 11, जो मतलब मैं मिस अगर करती थी तो मेरे को मतलब मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती थी अगर मैं उस टाइम पे नहीं सोती थी. मुझे नहीं तो अदरवाइज फिर एंजाइटी पे लेनी पड़ती थी, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी. बिकॉज अब वो कई सालों से वो एक रूटीन बन गया था, क्योंकि उस टाइम पे पहले मैं एक मेडिसिन लिया करती थी जो डॉक्टर देते थे. 9 to 11, 9 o'clock लेनी होती थी. तो 14 से लेके 21, मतलब 4-5 साल वो मेडिसिन चली मेरी. फिर जब मैं इन प्रैक्टिसेस में आई तो मैंने 21 दिसंबर से मैंने ये लिखना शुरू कर दिया. हर ड्रीम लिस्ट में पहले जो हेल्थ का हम बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले से डिवाइड किया फिजिकल में. मैं फिजिकल में हमेशा लिखती थी कि आई एम हैविंग अ नेचुरल स्लीप साइकिल फ्रॉम 9 PM to 3:30 AM, क्योंकि मैं बहुत साल पहले लाइक 2012-13 में मैं इतने बजे उठा करती थी, तो वो माइंड में था कि वापस उसी पे जाना है. तो मैं लिख रही थी. तो अब बट सुबह उठना वाला हो गया, लाइक मॉर्निंग तो स्टार्ट हो गया था, बट वो नैप पीरियड हमेशा होता था कि कभी 9 to 11, कभी 9 to 11:30. तो मुझे लगता था मेरा दिन चला जाता है सारा उसी में ही ना. तो बट हर ड्रीम में लिस्ट में मैं लिखती थी है वो मैजिकल डे की फॉर्म में, फिजिकल हेल्थ में, कि इस तरह से मेरा चल रहा है. या फिर जब हम हेल्थ का वो जो 16 चैप्टर करते हैं ना, मैजिकल हील योर हेल्थ वाला, तो उसमें एक फ्यूचर वाला जो लिखते हैं स्टेप 3, कि हाउ यू विजुअलाइज योर हेल्थ. तो उसमें मैं हमेशा यही विजुअलाइज करती थी कि मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं सो नहीं रही, मतलब मैं कॉन्टिन्यूसली बाय 1 or 2 मेरे सारे काम हो गए, लाइक लिखना पढ़ना सब कुछ. तो अभी जब मैं आई वापस, मतलब इंडिया भी गई, और जेट लैग होता है, बट समहाउ क्या होता था कि 9-9:30 नींद आ रही है, सुबह उठ रहे हैं
तो मुझे लगा इंडिया में काम इतना था क्योंकि घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मुझे सोने का ही टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं सो नहीं रही। अब जब से मैं कनाडा भी आई हूँ, तो मुझे सडनली कल रियलाइज हुआ कि मैं तो सो ही नहीं रही। मैं तो सुबह उठती हूँ और अब तो मैं सीधा इस 9 बजे, मतलब 8:30 9 बजे मैं स्लीपी हो जाती हूँ और मैं 9 9:30 सो जाती हूँ। देन एकदम मुझे आया कि मैं कितने सालों से यही तो लिख रही हूँ कि मेरा वो जो 9 to 11 11:30 वाला जो टाइम होता है, वो मतलब स्किप हो जाए और मेरा बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन चले। सो अब इट्स बिन लाइक कितने लाइक महीना हो गया मुझे, मैं कोई नैप नहीं लेती। मैं सुबह मॉर्निंग उठती हूँ और मैं शाम को स्ट्रेट अवे लाइक 8:30 9 o'clock आई स्लीप। सो इट इज लाइक मैं एकदम मुझे रियलाइज हुआ, मैंने मुझे मुझे मालूम भी नहीं पता लगा कब ये मेरे सिस्टम में एंटर हो गया। सो आई वाज सो हैप्पी, एंड हैप्पी होने के साथ साथ आई वाज मेस्मराइज्ड कि हाउ थिंग्स वर्क। लाइक मैं लिख के भूल चुकी थी, और बिलीव मी मुझे ऐसा लगता था ये वाला गैप जो नैप है ना, ये पता नहीं होगा या नहीं। और मैं घर पे रहती तो मुझे इतना माइंड भी नहीं होता था कि चलो सो गया, बट सबकॉन्शियस माइंड में मुझे हमेशा लगता था कि एट ए स्ट्रेच में अपना काम खत्म कर लूं बाय 2 3, जो भी पढ़ना लिखना, उसके बाद आई स्पेंड टाइम विद माय किड्स फैमिली, वो सब करूं। सो अब वैसा ही चल रहा है, लाइक आई वेक अप बाय 3:34 और कोई नैप नहीं, और मेरे को कोई कुछ भी नहीं होता। बिलीव मी, जैसे आपने अभी बोला नर्वस सिस्टम में, वो मेरे नर्वस सिस्टम में फिट इन था नैप, कि अगर मैं नहीं सोऊंगी तो मुझे चक्कर आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। एंड कई बार मेरी प्रिया से बात होती थी तो मैं उसको लिखती थी ओके गोइंग फॉर अ पावरफुल नैप, और प्रिया भी बोलती थी क्योंकि उसकी रात होती थी, वो भी बोलती थी इसकी मैं भी सोने जा रही हूँ और तुम भी दोनों, हम दोनों एक ही टाइम पे सोने जा रहे हैं, बिकॉज मेरी मॉर्निंग उसकी इवनिंग। सो दिस इज माय विक्ट्री शेयरिंग एंड सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू द ड्रीम लिस्ट, ये सब प्रैक्टिसेस कि ये हुआ। ऑनेस्टली मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मोर देन हैप्पी। आई एम सो ग्रेटफुल कि ये मेरे लिए एक मिरेकल है जो मतलब हो गया। या सो दैट्स माय शेयरिंग Great. विक्टोर। Thank you so much and wish you the best of health, physical, mental, emotional, सब कुछ, social, all of that. Thank you so थैंक यू। much. Thank you. Yes, now we have Archana Jain. आपको unmute करना होगा. Good morning, everyone. So I want to ask one question, like जैसे अभी इन्होंने सुनैना ने शेयर किया ये अपना एक्सपीरियंस। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस सुनैना। तो हमें जो अपने हेल्थ के चीजें हैं या जो भी हम अपने गोल चाहते हैं, तो वो हमें डेली लिखने हैं और प्लस हमें ब्लेसिंग्स डेली लिखने हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दो। अगर आपका कोई बहुत वैसा वाला चैलेंज है कि अपनी जिंदगी में आप कुछ चीजें बदलना चाहते हो, है ना, हेल्थ के मामले में, मनी के मामले में, मतलब जैसे अभी डे 0 में आई थिंक हम परसों वाले सेशन में ये पढ़ेंगे कि रोंडा बर्न ने बहुत अच्छे से समझाया है कि जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ और उसको सैग्रीगेट करो। हेल्थ गोल मेरे क्या है, पैसे के गोल मेरे क्या है, कैरियर के गोल क्या है, रिलेशनशिप के गोल क्या है, ठीक है, और उसके अलावा घर खरीदना, जो भी है वो सारी चीजें। तो अगर आपको कोई चीज बहुत बॉदर कर रही है तो उसको आपको अपने ड्रीम लिस्ट में डालना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा कोई सपने जैसी चीज भी नहीं है कि लाइक डिजायर लिस्ट अगर वैसी नहीं है, तो इन दैट केस आप 369 प्रैक्टिस कर सकते हो। और या फिर आप रोज 5 बार उसके बारे में, दैट आई एम सो हैप्पी दैट, जैसे एज एन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जो स्लीप का अगर है तो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एंजॉयिंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड हैप्पी दैट आई स्लीप लाइक अ बेबी। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट like I'm always so fresh when I wake up. I'm so grateful that I have a constant deep sleep which leaves me so fresh. I'm so grateful that because of my sleep I am alert and active throughout the day. अब आपने ये 5 लिखे, अगर ये चीज आपको बॉदर कर रही है बहुत ज्यादा तो ये 5 आप लगातार लिखते रहो। सो इस तरह से दैट इज हाउ वी डू इट, ठीक है। तो ओके, इसीलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिसेस समझाओ कि क्या करते हो, तो वो बहुत जरूरी होता है। और हेल्थ वाले चैप्टर में एक चैप्टर आता है जिसका रेफरेंस दिया था सुनैना ने, दैट चैप्टर इज एक्चुअली कॉल्ड मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन हेल्थ। तो उसमें हम
3 अपने पास्ट के लिए लिखते हैं कि जब हमने खूब अच्छी हेल्थ एंजॉय की थी बचपन में, कभी स्कूल में एथलेटिक मीट में गए, कभी एनुअल फंक्शन का प्रैक्टिस चल रही थी, बड़ी अच्छी हेल्थ थी, फिर हो सकता है वैष्णो देवी घूमने गए, वहां पे मतलब बहुत खुद चढ़ाई चढ़ी अपने पैरों से, तो इसका मतलब अच्छी हेल्थ थी। 3 पास्ट के लिखने होते हैं, 5 जो बॉडी के फंक्शंस अभी सही चल रहे हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेशन सही चल रहा है, हमारा हार्ट अच्छा चल रहा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चल रहा है, हमारी किडनी अच्छा काम कर रही है ना, इस तरह से 5 चीजें। और एक जो है वो फ्यूचर के लिए लिखते हैं, तो प्रैक्टिस वो चैप्टर नंबर 15 में आएगा। एक चीज फ्यूचर में जो आप अपने हेल्थ के बारे में या बॉडी के बारे में चेंज करना चाहते हो, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया था, तो वो चैप्टर आएगा। लेकिन कभी भी कुछ क्रिएट करने के पहले पास्ट में जो सारे गड्ढे हैं उनको भरने बहुत जरूरी होते हैं। तो पास्ट में अगर हमने कभी भी बहुत कंप्लेन की है दैट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरे हिप्स कितने ब्रॉड हैं, मेरा पेट निकला हुआ है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसे अगर इस तरह की चीजें की है कि क्या मुझे बार बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, अगर इस तरह किया, इसका मतलब है कि हमने आगे के लिए गड्ढा खोद दिया है। तो ऐसे में हमको पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है। तो अभी चैप्टर आएगा हमारा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। अभी चैप्टर 12 तक हम सिर्फ पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, और सारा वो लैंड जिसपे हमको अब बीज बोने हैं और बहुत सुंदर जिंदगी करनी है, उस पे हम अच्छे से उसको लेवल करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, सारे गड्ढे वो भरेंगे। तो हम 12 चैप्टर तक सिर्फ अपने पास्ट के लिए कर रहे होते हैं। पास्ट के लिए थैंक यू कि मम्मी पापा ने बचपन में इतने अच्छे से हमारा ध्यान रखा, हम पे इतने पैसा खर्च किया, हमको स्कूल भेजा, बार बार जूते छोटे हो जाते थे, नए जूते ला के देते थे, फिर बड़े हुए तो कॉलेज की फीस दी, अपने मतलब अच्छे क्रीम, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीजें, बिजली, टीवी ला के दिया क्योंकि हमको टीवी देखने का शौक था। उस वक्त बहुत कम लोगों के पास टीवी होता था। जो भी घर में स्कूटी, बाइसिकल ला के दी, बचपन में छोटी वाली साइकिल होती थी जिसके 3 व्हील्स होते थे। हम बचपन में जाके सारे वो गड्ढे भरते जहां जहां पे भी हमने गड्ढे बनाए हुए थे अभी तक, है ना। और वो जब भर जाएंगे उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से हम क्रिएशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर हेल्थ वाला जो आता है, ये 13वें चैप्टर के बाद आएगा, क्योंकि जब हमने पूरा पास्ट के लिए बहुत अच्छा सा ग्रैटिट्यूड कर दिया और फर्टाइल ग्राउंड बना दिया है, अब फिर हम बीज डालेंगे चैप्टर नंबर 13 में। इसीलिए चैप्टर ये 1 बाय 1 स्टेप वाइज सीरीज में आते हैं। और अगर आपको सपोज नींद नहीं आती है तो आप मोर थिंक अबाउट द थिंग्स दैट थैंक यू यूनिवर्स, पहली थैंक यू दैट मैं कितने अच्छे से सोती हूँ। तो आप लिखो, आप सोचो, आप बोलो बस उस चीज के बारे में जो आप चाहते हो, क्योंकि जो डोमिनेंट थॉट्स होंगे वो हकीकत में बदल जाते हैं। तो ये नहीं सोचना है मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को नींद नहीं आती, ये सोचोगे तो नहीं आएगी नींद, है ना। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन पे जोर देते हैं कि मेरा पेट ही नहीं साफ होता ठीक से, मुझे बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसके कारण ये होता है वो होता है। तो लोग बहुत सारे गड्ढे कर दिए अब। तो इसलिए उन चीजों के बारे में, और धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसे नहीं हो पाता, मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है। और ये इट इज अ न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू वे ऑफ लिविंग। और फिर आप देखोगे कि यही नहीं, लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, लोगों की शुगर नॉर्मल हो गई है, लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया है ना। जो तेजल ने अपने डायबिटीज का बताया था कि कितना ज्यादा था उनका, 200 एंड समथिंग फास्टिंग ब्लड शुगर था, उससे अभी 5.2 HbA1c हो गया है। इसका मतलब है उनका 80 ब्लड शुगर हो गया है 200 एंड समथिंग से फास्टिंग में। तो इतना ज्यादा डिफरेंस लोगों की जिंदगी में आता है जब वो ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो उन्होंने क्या प्रैक्टिस की थी, उन्होंने भी बताया था। उन्होंने कहा था वो 108 की माला जो होती है, जो हिंदू रिलीजन में हम 108 की माला, वो क्या जाप करती थी वो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू दैट माई ब्लड शुगर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसे बोल के वो 108 की माला करती थी। तो उस तरह से उसे पता लगा लोगों को कि अच्छा ये भी हो सकता है कि ठीक है, लिखने के अलावा एक और टूल है कि ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह लाइफ विल जस्ट गेट बेटर। So that is how you can do it. ठीक है? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye bye and have a beautiful, magical day full of fun, love and laughter. Bye Thank bye. you. See you all Thank you. tomorrow.